Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids, physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. Okay, people, we will start with this chapter, which is a common chapter between CBSE 11th and State Board 12, which is mechanical properties of fluids. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब अपन करेंगे mechanical properties of fluids. ठीक है, तो what is a fluid? Fluid मतलब होता क्या है? देखो, a fluid is a substance that can flow. एक ऐसा substance है fluid जो flow कर सकता है. Fluid is anything which can flow. It ultimately assumes the shape of the containing vessel. तो आप समझ लो भाई साहब, gases, जितने भी आपके gases हैं और जितने भी आपके liquids हैं, all of them are basically what can be termed as fluids. जितने भी आपके gases हैं और जितने भी आपके liquids हैं, all of them will be fluids. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? सो ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स. तो अभी यार, तो फ्लूइड होता क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस दैट कैन फ्लो. इट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, और इट अल्टीमेटली अज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनर. जिस कंटेनर में आप फ्लूइड को रखेंगे, उस कंटेनर का जो शेप एंड साइज हो जाएगा, फ्लूइड का भी वही शेप एंड साइज हो जाएगा. ठीक है, सो इट अल्टीमेटली अज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनर. ठीक है, बिकॉज क्या हो गया भाई साहब? Because it cannot withstand shearing stress. Now what is shearing stress? एक डब्बा है, देखो ऐसा डब्बा है, ये सॉलिड है. ठीक है, आप यहां पे इसको स्ट्रेस देकर ऐसा अगर कर दें तो ये विथस्टैंड कर पा रहा है शेयरिंग स्ट्रेस को. ठीक है, समझ में आ रहा है? आप सब लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स तो पढ़ चुके हैं ना भाई साहब? 11 में पढ़ा था भाई साहब, झूठ मत बोलो. ठीक है, तो आपका भाई साहब समझ लो ये कोई आपका क्यूब है. ठीक है, क्यूब है, तो अगर क्यूब के ऊपरी हिस्से में आप एक फोर्स लगा रहे हैं और क्यूब ऐसा टेढ़ा हो जाए, ठीक है, उस फोर्स के चलते, तो ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये शेयरिंग स्ट्रेस को बियर कर रहा है. दिस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस. समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस. लिक्विड के या किसी गैस के ऊपरी हिस्से को अगर आप फोर्स देंगे तो ऐसा होगा क्या? ऐसे फिर से वापस आएगा क्या? नहीं, तो ये शेयरिंग स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाएगा. मतलब अगर आपने ऊपरी हिस्से को धक्का मारा तो वो आगे ही चला जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा. ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है भाई साहब? किसी चीज को हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेस बेयर कर रहा है, तो उसका मतलब वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाए. आपके साथ भी वही है कि आपके ऊपर अगर प्रेशर आ जाए तो उस प्रेशर को आप झेल कर फिर से नॉर्मल इंसान बन जाए, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस को बेयर करने की कैपेसिटी. समझ में आ रहा है? ये आप अगर स्ट्रेस को लेते लेते आप एबनॉर्मल हो जाएं तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है. ठीक है,
आप बिल्कुल पागल हो जाएं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स में पढ़ते पढ़ते इंसान पागल हो गया भाई साहब, ठीक है, तो नहीं बेयर कर पाया वो, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस मतलब हम क्या बोलते हैं कि इस पूरे ऊपर लेवल को अगर हमने धक्का मारा तो ये गया, टेढ़ा हुआ, जैसे हमने फोर्स को हटाया ये वापस आ गया, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। सॉलिड्स में ऐसा शेयरिंग स्ट्रेस देखने को मिलता है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में नहीं मिलेगा। लिक्विड्स और गैसेस का जो ऊपरी सतह है उसमें थोड़ा भी स्ट्रेस आया तो ये भाई साहब आगे निकल जाएगा, तुमने इसको थोड़ा भी पुश किया तो भाई साहब आगे निकल जाएगा, ठीक है। सो इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जितना ऊपर जाते रहेंगे भाई साहब, जो हमारे स्टैंडर्ड्स जितने बढ़ते रहेंगे उतना ही हमारे डेफिनेशंस भी कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगे। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर, दैट फ्लूइड्स आर व्हाट, fluids are basically the ones which cannot withstand shearing stress, thus both liquids and gases are known as fluids। तो इनको हम बोलेंगे भाई साहब fluids। Are we clear on this one people? हम ठीक है, कॉन्सेप्चुअली हम जानते हैं फ्लूइड्स क्या हैं, लिक्विड्स और गैसेस, तरल पदार्थों को हम बोलते हैं भाई साहब फ्लूइड्स, जो एक जगह पे ठहर नहीं सकते हैं उनको हम बोलेंगे फ्लूइड्स। लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो आपका जो ऐसा चीज है जो शेयरिंग स्ट्रेस को ना झेल पाए उसको हम बोलेंगे फ्लूइड, ठीक है। दैट विल बी बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स भाई साहब क्या है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, ठीक है। तो आपके फ्लूइड में भाई साहब क्या होता है, जैसे मतलब गैस है कोई, ये सारे मॉलिक्यूल टपाक टुपुक भाई साहब इधर उधर जा रहे हैं। So the atoms and molecules in a fluid are arranged in a pretty random manner. Random movement हो रही है भाई साहब, ठीक है, in a very random manner they are moving. A fluid cannot withstand tangential or shearing stress for an indefinite period. It begins to flow when a shearing stress is applied. तो अगर आपने भाई साहब इस ऊपरी हिस्से में स्ट्रेस या फोर्स डाला तो ये भाई साहब आगे चलने लगेगा, ठीक है, वापस नहीं आएगा। अगर आपने फोर्स को हटा लिया तो चीजें अगर वापस आ रही हैं तो इसका मतलब शेयरिंग स्ट्रेस बेयर कर पा रहा है। लेकिन अगर आपने शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया तो एक लेवल आगे चला जाएगा भाई साहब, एक लेवल अगल ही हो जाएगा, ठीक है। सो दे कैन नॉट बेयर टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड तक अगर आप टेंजेंशियल स्ट्रेस को लगा रहे हैं किसी फ्लूइड में तो बस अब उसकी सतह आगे निकल जाएगी, ठीक है। It begins to flow when a shearing stress is applied. Now, a fluid has no definite shape of its own. इसका कोई शेप नहीं होता है। It takes the shape of a container. आपने सिलेंडर में रखा है तो सिलेंड्रिकल फ्लूइड हो जाएगा, आपने अगर बॉक्स में रखा है तो बॉक्स टाइप का फ्लूइड हो जाएगा, क्यूबिक फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। A fluid has no definite shape of its own. It ultimately assumes the shape of the containing vessel. तो भाई साहब जो containing vessel होगा उसी का शेप ये ले लेगा। Are we clear to this one people? ठीक है। So a fluid has no modulus of rigidity. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है भाई साहब, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड शेप्स में होती है भाई साहब, ठीक है। यंग्स मॉडुलस आपने पढ़ा हुआ है ना भाई साहब, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सब भूल भाल गए भाई साहब। अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट विथस्टैंड अ फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, सो अ फ्लूइड डज नॉट हैव बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसका भाई साहब कोई बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता है, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब आपका जब शेयरिंग स्ट्रेस हम डालते हैं किसी पे उसके वापस आने की टेंडेंसी, डेल्टा एक्स बाई एल, सब भूल भाल गए हो भाई साहब, ठीक है। डेल्टा एक्स बाई एल दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके। डिफरेंस बिटवीन, तो ये आपके फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज हो गए कि भाई साहब दे आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर, इनका जो कंटेनर का शेप होगा वही इनका शेप एंड साइज होगा। ये भाई साहब शेयरिंग स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाएंगे। अगर शेयरिंग स्ट्रेस को बेयर नहीं कर पाएंगे तो इनका कोई बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होगा, क्योंकि इनका स्ट्रेस बेयरिंग, इनका कोई स्ट्रेन नहीं होगा। भाई देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जब हम बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में फोर्स अपॉन एरिया हो गया भाई साहब स्ट्रेस, और आपका स्ट्रेन क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स बाई एल। मतलब आपका जो ऊपरी सतह कितना दूर गया, ठीक है, ऐसा, ये ऐसा हो गया भाई साहब, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ ये कितना हुआ भाई साहब, डेल्टा एक्स बाई एल, डेल्टा एक्स बाई एल। तो इसको हम बोलेंगे एफ ए बाई डेल्टा एक्स बाई एल। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस, अ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल and has a definite volume and a free surface of its own। एक लिक्विड भाई साहब इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, and has a definite volume and a free surface of its own। उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिस कंटेनर में रहेगा उसका शेप वो ले लेगा लेकिन उसका वॉल्यूम रहेगा। 20 मिलीलीटर के एक लिक्विड को आप ग्लास में भी रख सकते हैं, बीकर में भी रख सकते हैं, आप एक क्यूबिकल बॉक्स में भी रख सकते हैं, वो 20 मिलीलीटर का ही रहेगा। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम डेफिनेट हो गया। हाँ, लेकिन जब आप क्यूबिकल बॉक्स में रख रहे हैं तो उसका शेप एक क्यूब की तरह हो जाएगा, जब आप एक सिलेंडर में रख रहे हैं तो उसका शेप एक सिलेंडर की तरह हो जाएगा, जब आप भाई साहब उसको
किसी ऐसे वी शेप वेसल में रखा है तो उसका शेप उस तरीके का हो जाएगा। सो इट विल नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट इट विल हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। इनकंप्रेसिबल होता है, इनकंप्रेसिबल गैसेस को जैसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, बस आप कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड को आप कंप्रेस कर पाएंगे क्या? अच्छा लग जाएगा वो वैसा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बेसिकली नॉन कंप्रेसिबल हो जाएगा। एंड एज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ फ्री सरफेस, एक फ्री सरफेस इनका होगा, देयर विल बी अ फ्री सरफेस फॉर अ लिक्विड, ठीक है। अ गैस इज कंप्रेसिबल एंड इफ इट एक्सपैंड्स टू ऑक्यूपाई ऑल द फ्री सरफेस अवेलेबल टू इट। गैस भाई साहब आपका कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। ये गैस को अगर आपने कंप्रेस किया तो आप कंप्रेस करते, जैसे आपने इसको मतलब समझ लो वेट दिया है यहाँ पे, और इन वेट्स को जैसे आप हटाएंगे टुपुक से ऊपर चला जाएगा भाई साहब, ठीक है। जैसे आप प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो वो अपना एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और वही आपका चार्ल्स और बॉयल्स लॉ है भाई साहब, पी, और या अगर हम देखेंगे प्रेशर आपका वॉल्यूम के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ओके ओके ओके। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। Its study includes hydrostatic pressure, Pascal's law, Archimedes principle, flotation of bodies and surface tension. तो fluid statistics basically होता क्या है? branch of physics that deals with study of fluids at rest. तो फ्लूइड स्टैटिक्स और दो टाइप के फ्लूइड की स्टडी होती है, एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स और एक होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो आप जब किसी फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं जब वो रेस्ट पे है, ठीक है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स व्हिच आर एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स। इसको हम भाई साहब फ्लूइड स्टैटिक्स बोलेंगे या हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। इट स्टडी इंक्लूड्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पास्कल्स लॉ जो हम पढ़ेंगे भाई साहब, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो आप पढ़ चुके हैं, याद है किसी को? फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज एंड सरफेस टेंशन, ठीक है, ये सारी चीजों को आप भाई साहब पढ़ चुके हैं। ओके, फ्लूइड डायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सरफेस टेंशन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना? तुम लोगों ने पढ़ा है, सरफेस टेंशन हो गया है ना तुम्हारा? सरफेस टेंशन, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो पढ़ा है ना भाई साहब, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन is called fluid dynamics or hydrodynamics. Its study includes equation of continuity, Bernoulli's theorem, Torricelli's theorem, viscosity, etc. ठीक है, यहाँ पे मूविंग फ्लूइड है, फ्लूइड इन अ मूविंग स्टेटस है, ठीक है, कह रहे ओके ओके ओके। थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड, a liquid is in equilibrium has a fundamental property that it exerts a force on any surface in contact with it. तो अगर समझ लो कोई बाल्टी भर का पानी आपने रखा हुआ है, ठीक है, और एक मग्गे को आप डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विल यू एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स? अगर आप भाई साहब उसको डुबाने की कोशिश करें, विल यू एक्सपीरियंस? तो ये एक स्टैटिक लिक्विड है, ठीक है। अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब भाई साहब उसमें कोई अफरा तफरी नहीं मची हुई है। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, हैज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? दैट इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी सरफेस व्हिच इज इन कांटेक्ट विद इट। किसी भी सरफेस पे ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जो उसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। एंड दिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस सरफेस पे ये फोर्स जो है तो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ये सरफेस पे ये फोर्स जो है तो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ठीक है। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसको हम भाई साहब क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। और थ्रस्ट हमेशा नॉर्मल होगा, थ्रस्ट मतलब नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे होगा। थ्रस्ट आपका, फोर्स और थ्रस्ट में डिफरेंस क्या है? फोर्स आपका किसी भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन थ्रस्ट जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा। इस डिफरेंस को याद रखिएगा। फोर्स ऑन अ बॉडी, फोर्स ऑन अ बॉडी कैन बी एट एनी एंगल, कैन बी एट एनी एंगल, ठीक है। बट थ्रस्ट क्या होगा भाई साहब? थ्रस्ट विल ऑलवेज बी, थ्रस्ट विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो जब भी आप किसी बॉडी को, तो यहां पे आपसे मिले किसी मग्गे को डुबाने की कोशिश करो, ये मग पे जो है ये जो फोर्स लग रहा है ये भाई साहब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इसी परपेंडिकुलर फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो दिस इज द सेम एज, थ्रस्ट और फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ भाई साहब फोर्स किसी भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन थ्रस्ट आपका हमेशा बॉडी पे नॉर्मल एक्ट करेगा, ठीक है, बॉडी के सरफेस पे नॉर्मल एक्ट करेगा, ठीक है। अभी समझो तुम्हारा अगर
ऐसा कोई गोलाकार बॉडी तुम डुबोने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है भाई साहब, पानी में इसको डुबोने की कोशिश कर रहे हो तुम, तो इसमें फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे 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 लगेगा भाई साहब, ठीक है। द फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, ठीक है। एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इज कॉल्ड थ्रस्ट। एसआई यूनिट, फोर्स का भी एसआई यूनिट क्या होता है भाई साहब, न्यूटन, और थ्रस्ट का भी एसआई यूनिट क्या होता है भाई साहब, न्यूटन। फोर्स एंड थ्रस्ट दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है भाई साहब, आपका न्यूटन। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अगर आप भाई साहब यहाँ पे इसका किसका बात करें भाई साहब, इसके डायमेंशंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ml/t-2, ml/t-2 मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। थ्योरम पीपलम, ओके। तो आप देखो यहाँ पे हम थ्रस्ट जब बोलते हैं तो लेट्स से एक फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। द रिएक्शन, तो लिक्विड क्या है भाई साहब, इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड में कोई अफला तफली नहीं है, ध्यान से देखो, ये लिक्विड किसी बीकर में है, इसमें कोई अफला तफली नहीं है, एट रेस्ट या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। द रिएक्शन आर अलोंग OB, तो ये आपका रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन आर अलोंग OB हैज टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स निकाल लो, किसी भी फोर्स का आप दो कंपोनेंट निकाल सकते हो, है ना, इस साइड में और इस साइड में एक। लेट्स से हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा, तो आपका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा नहीं। ये वाला जो कंपोनेंट है आपका भाई साहब, दिस component is going to be how much, r cos theta, and obviously this component is going to be how much, r sin theta। ये r cos theta हो गया, ये r sin theta हो गया, ठीक है। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, r cos theta, और नॉर्मल कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, r sin theta। ये r cos theta हो गया, ये हो गया आपका r sin theta, ठीक है। दिस विल बी r cos theta and this will be r sin theta। Since a liquid cannot resist any tangential force, so the liquid near O should begin to flow along OC। तो लिक्विड कभी भी, जैसे हमने पढ़ा कि आपका शेयरिंग स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब अगर आपने किसी लिक्विड के लेवल को धक्का मारा तो वो आगे निकल जाएगा, इट कैन नॉट हैंडल शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर फोर्स की बात करें, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो आर कॉस थीटा की अगर बात करें, सिंस अ लिक्विड कैन नॉट रेजिस्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स, सो द लिक्विड एट नियर O शुड बिगिन टू फ्लो अलोंग OC। तो अगर वो हैंडल नहीं कर सकता है तो इस फोर्स के चलते वो क्या करेगा, आगे चलने लगेगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना भाई साहब, आपको नहीं दिख रहा है ऐसा होते हुए, ठीक है। बट द लिक्विड इज एट रेस्ट, ठीक है। द फोर्स अलोंग OC मस्ट बी जीरो, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है अलोंग OC दैट हैज टू बी जीरो। और ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा भाई साहब, जब आपका r cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, r cos थीटा की वैल्यू हो जाए जीरो। अभी देखो, अगर आपने एक बीकर के ऊपर पानी रखा है तो R तो रहेगा, ठीक है, उसका एक रिएक्शन तो लगेगा ना उसमें। एक बीकर में अगर आपने पानी रखा, पानी का वेट है, पानी का वेट नीचे की तरफ, बीकर का रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये तो रहेगा ही। लेकिन हम जो अज्यूम कर रहे हैं कि R ऐसे स्लैंटिंग में रहेगा, वैसा नहीं रहेगा। तो अपन यहां पे r cos थीटा अगर जीरो है तो या तो r जीरो है या तो cos थीटा जीरो है, ठीक है, या तो r जीरो है या तो cos थीटा जीरो है। r जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये खाली होता था तो r जीरो होता था, लेकिन क्योंकि ये भरा हुआ है तो इसमें एक रिएक्शन लगेगा। आप भाई साहब जिस चेयर में बैठे हुए हैं उस चेयर का एक रिएक्शन आपके ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये जो तमाम चीजें इस टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, इन सब पे एक रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। अगर मैं भाई साहब इस मोबाइल को इस टेबल के ऊपर रख रहा हूं, ये रह रहा है। अगर मैं भाई साहब एक कागज का ऐसा पन्ना लूं, दो ईंटों के बीच में एक ऐसा पतला सा कागज ले लूं और उसके ऊपर इस मोबाइल को रखने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कागज का रिएक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है इसके वेट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसीलिए वो नीचे जा रहा है तो वो भी फ्लैट सरफेस, लेकिन इट कैन नॉट विथस्टैंड, रादर द रिएक्शनरी फोर्स इज लेसर देन द वेट, सो इट विल गो डाउन, इट हैज टू गो डाउन, ठीक है। जब आपका वेट और रिएक्शनरी फोर्स बैलेंस हो जाए तब भाई साहब इसका मतलब दोनों mg और r बराबर हो गए। अभी आपने एक बीकर में पानी लिया हुआ है तो क्या ये भाई साहब पानी नीचे चला जा रहा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जिस पानी का जो वेट है और इसका जो रिएक्शन है इसके ऊपर लग रहा है, देयर इज अ सडन रिएक्शन दैट इज हैपनिंग एंड इट इज बैलेंसिंग इट, ठीक है। अभी मुद्दा ये है कि ये जो रिएक्शनरी फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर हमने मान लिया कि भाई साहब इसका डायरेक्शन ऐसा स्लांटिंग है, लेट्स से वी हैव अज्यूम्ड इट, तो आपके दो कंपोनेंट्स निकलते हैं, एक हो गया r cos थीटा और दूसरा हो गया r sin थीटा। अभी अगर आप भाई साहब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज लेते हैं, ऑब्वियसली ये एक फ्लूइड है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि टेंजेंशियल फोर्स अगर एक्ट कर रही है किसी लिक्विड या फ्लूइड के सरफेस पे, विच इज बेसिकली अ लिक्विड और अ गैस,
तो भाई साहब वो मूव करने लगेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। बट इज इट मूविंग? नो, इट इज इन इक्विलिब्रियम, ये मूव नहीं कर रहा है भाई साहब, तो ये तो भाई साहब इक्विलिब्रियम में है। अगर ये भाई साहब आपका इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या बोल सकते हो, आर कॉस थीटा जो है फोर्स, इट इज नॉट शोइंग एनी मूवमेंट, तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। और अगर ये जीरो के बराबर है तो या तो आर या तो कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक जीरो है। आर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिएक्शनरी फोर्स नहीं लग रहा है तो ये भाई साहब धप्प से नीचे हो जाएगा, ये पूरा टूट के नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। इट विल कम डाउन, ठीक है। सो इट विल नॉट बी एबल टू बियर द फोर्स, इट विल कम डाउन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो आर तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आपका कॉस थीटा जीरो है। और कॉस थीटा जीरो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, π/2 और 90 डिग्री। इसका मतलब आपका ये जो आर है, ये थीटा कौन सा बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सो इट इज वर्टिकल। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, तो इसका मतलब लिक्विड और सरफेस में हमेशा वर्टिकल फोर्स लगेगा, और इसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट और फोर्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है। फोर्स आपका भाई साहब आड़ा टेढ़ा एंगल भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन थ्रस्ट आपका हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके। सो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और थीटा भाई साहब आपकी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। हेंस अ लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट, तो हर एक पॉइंट पे भाई साहब परपेंडिकुलर। तो अभी जैसे समझो इस लिक्विड का देखो भाई साहब, ऐसा कैसा फोर्स लगेगा, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, यहां पे कैसे लगेगा, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, इधर ऐसे फोर्स लगेगा। आप बोलोगे अगर इधर फोर्स लग रहा है तो आगे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि उधर वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, उधर वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। अगर मैं भाई साहब इसको ऐसे पलटी कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये आगे चला जाएगा। क्यों आगे चला जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स भाई साहब इससे बढ़ गया अभी, तो ये आगे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ये। अगर मैं समझो इसको ऐसे टेढ़ा करूं तो कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे एक बीकर बन जाएगा, और ये आपको ऐसा दिखेगा पानी, है कि नहीं, पानी ऐसा दिखेगा। ये मूव किया है पानी इधर, क्यों पानी मूव किया है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब इसका फोर्स ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया, इसीलिए वो मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, प्रेशर इज व्हाट पीपल, हम एकदम बचपन में जब आप पैदा हुए थे भाई साहब हॉस्पिटल में, और भाई साहब घर पहुंचते पहुंचते आपको ये मालूम चल गया था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है, ये बहुत पहले पढ़ा है भाई साहब, आई डोंट थिंक दैट इट नीड्स रिवीजन। सो यहाँ पे आपका क्या हो गया, द प्रेशर एट अ पॉइंट, द प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस इज द थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली। यही थ्रस्ट, देखो थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली बोलना गलत होगा, क्योंकि थ्रस्ट हमेशा नॉर्मली ही होता है, ठीक है, सरफेस पे नॉर्मल ही होता है, ठीक है। हम फोर्स बोल सकते हैं वहां पे, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। ये फोर्स भाई साहब आपका नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई साहब, जिसका दूसरा नाम है भाई साहब थ्रस्ट, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का दूसरा नाम है थ्रस्ट। If a total force F acts normally over a flat area A, then the pressure is equal to force upon area. यूनिट भाई साहब क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा भाई साहब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मींस रास्कल, रास्कल नहीं पास्कल, ठीक है। तो इट इज बेसिकली पास्कल, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर वी क्लियर? बड़ा एकदम से आप लोग में बहुत बोलते हैं ना इसको रास्कल। अच्छा जी, आपको कोई गाना भी है ना एक, तो ऐसा सुना था मैंने बहुत पहले। Okay, so this will be 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If the force is not distributed uniformly over the given surface, then pressure will be different at different points. ठीक है, अलग अलग pressure होगा भाई साहब। If a force delta F acts normally on a small area delta, then the pressure of that point, ये भाई साहब और कुछ नहीं है, dF by dA, ठीक है। आप जब लिमिट्स की बात करते हैं तो लिमिट अगर आपने लिखा यहाँ पे डेल्टा x अप्रोचिंग जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी को अपन क्या लिखते हैं भाई साहब, dy बाई dx। तो सेम चीज यहाँ पे भी लिखी जा रही है। आपका प्रेशर कितना हो जाएगा भाई साहब, लिमिट डेल्टा a अप्रोचिंग जीरो, ठीक है, डेल्टा f बाई डेल्टा a, दैट विल बी हाउ मच आ पीपल आर, df बाई dA। समझम समझम समझम, बहुत बढ़ियम बढ़ियम बढ़ियम। ओके, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कहाँ है भाई साहब प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स का अगर डायरेक्शन है तो कहाँ है इसको स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हो। प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, राइट। तो फोर्स तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर कैसे स्केलर क्वांटिटी हो गया। हाँ क्या बोल रहे हैं,
नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रेशर क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? ओके तो देखो यहाँ पे जब हम किसी फ्लूइड की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ओके समझ लो भाई साहब, यहाँ पे आपका एक बीकर है, ठीक है, और इसमें भाई साहब क्या भरा है? फ्लूइड भरा है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे यहाँ पे जो प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर, इस डायरेक्शन में जो प्रेशर, इस डायरेक्शन में जो प्रेशर, सारे प्रेशर या सारे फोर्सेस इक्वल होंगे, सारे फोर्सेस इक्वल होंगे, इसलिए डायरेक्शन लेने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, सब इक्वल होंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी इक्वल। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज फ्लूइड प्रेशर at a particular point in fluid has the same magnitude in all directions। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा in all directions। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रेशर ऊपर की तरफ इतना है। मतलब समझो अगर कोई बॉडी को आपने डुबो दिया है, लेट्स से कोई बॉडी को आपने आधा पानी में डुबा हुआ, ठीक है, इस बॉडी पे ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है नीचे भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, साइड में भी इतना ही प्रेशर लग रहा है, इस साइड में भी इतना ही प्रेशर लग रहा है, ठीक है। सो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी because fluid pressure at a particular point in fluid has same magnitude in all directions। This shows that a definite direction is not associated with fluid pressure। एक definite direction associated नहीं है with fluid pressure। Through force is a vector quantity, only the magnitude of the normal component of the force appears in the above equations for pressure। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब आप थर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ नॉर्मल फोर्स को ही आप कंसीडरेशन में ले रहे हो, ठीक है, इसीलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी हम नहीं बोल रहे हैं। जब आप ये लिख रहे हो ना भाई साहब, ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो ये एक्चुअली फोर्स नहीं है, ये थर्स्ट है। मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आप इसको ले रहे हो, दूसरे किसी डायरेक्शन में आप इसको ले ही नहीं सकते, तो इसीलिए ये आपका नॉर्मल फोर्स होगा। मतलब जिस भी एरिया पे, समझ लो इस एरिया पे मुझे थर्स्ट निकालना है, तो थर्स्ट क्या होगा भाई साहब? ऐसा, ठीक है। इस एरिया पे निकालना है तो थर्स्ट क्या होगा? ऐसा। इस एरिया पे निकालना है तो थर्स्ट क्या होगा? ऐसा। मतलब कोई भी सरफेस एरिया ले लो, उस पे आपका ये नॉर्मली होगा। आपने सरफेस एरिया को ऐसा कर दिया, ये नॉर्मली होगा, सरफेस एरिया को ऐसा कर दिया, ये नॉर्मली होगा, ठीक है। तो जब नॉर्मली होना एक ही डायरेक्शन है, तो आप इसको भाई साहब वेक्टर मान ही नहीं सकते ना। फोर्स इंडिपेंडेंटली आप उसको भाई साहब फ्रीडम दे रहे हैं अपना डायरेक्शन चूज करने के लिए, थर्स्ट को आप फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, थर्स्ट को आपने फ्रीडम दिया ही नहीं है, उसको सरफेस से नॉर्मल ही होना पड़ेगा। इसीलिए प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपका डायरेक्शन वही रहेगा। डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट यू आर चूजिंग। ये जो आपने फोर्स लिखा है, इसका डायरेक्शन आपने स्पेसिफाई कर दिया है एरिया से नॉर्मल। क्या समझ में आ रहा है? एरिया पे नॉर्मल होगा ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा भाई साहब? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, तो फिगर शोज अ स्मॉल प्रेशर मेजरिंग डिवाइस प्लेस इन अ फ्लूइड वेसल वेल, ठीक है। तो आपका भाई साहब प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। दिस प्रेशर सेंसर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पिस्टन ऑफ डेल्टा ए एरिया। यहां पे देखो एक स्मॉल पिस्टन है, इसका एरिया कितना है? डेल्टा ए। इसको भाई साहब आपने किस में डाला हुआ है? एक फ्लूइड में डाला हुआ है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, अगर आपको कहीं पे भी फ्लूइड प्रेशर को मेजर करना है, दिस फिगर शोज अ स्मॉल प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इन अ फ्लूइड फिल्ड वेसल। आपका भाई साहब इस पूरे वेसल में आपने फ्लूइड को फिल करके रखा हुआ है, गैस हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। द प्रेशर सेंसर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पिस्टन ऑफ एरिया ए। तो ये आपका स्मॉल पिस्टन है ऑफ एरिया डेल्टा ए, मूविंग इन अ क्लोज फिटिंग सिलेंडर। ये आपका क्लोज फिटिंग सिलेंडर है एंड रेस्टिंग अगेंस्ट अ स्प्रिंग। The cylinder is evacuated and the spring is calibrated to measure the force acting on the cylinder. The inward force exerted by the fluid on the piston, तो ये आपका भाई साहब फोर्स है, ठीक है, is balanced by the outward force and is thereby measured. If delta F is the magnitude of this normal force acting on the piston of the fluid area A, the fluid pressure is, तो आपका भाई साहब fluid pressure क्या हो जाएगा? भाई साहब ये जा रहा है नीचे, ठीक है कि नहीं? ये वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, मतलब यहाँ पे कोई एयर प्रेशर नहीं है आपका, ये आपका प्रेशर सेंसर है। ये जितना नीचे गया, ठीक है, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं भाई साहब, और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए। तो प्रेशर को आप मेजर कर सकते हैं डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, अ शार्प नाइफ कट्स देन अ ब्लंट वन। आपका भाई साहब नाइफ के दो सरफेसेस होते हैं, एक जो सरफेस होता है वो ब्लंट होता है देखो, और एक भाई साहब धार वाला होता है।
तो धार वाले से ही आपका कटता है, इस साइड से आप कटने जाएंगे तो नहीं कटेगा। तो क्या देख रहा है, मोबाइल देख रहा है ना, नहीं, हाँ लो, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक अगर लेट से छुरी है तो इस पार्ट से आप भाई साहब इसको नहीं काट सकते। दिस इज द ओनली सरफेस थ्रू विच यू कैन डू कटिंग्स और वेजिटेबल कटिंग जो भी है, चॉपिंग जो भी आप करते हैं, इस सरफेस से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब आपका बहुत शार्प होता है। शार्प होता है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रेशर अपॉन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, आपका एरिया बहुत कम हो जाएगा, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ब्लेड्स देख लो आप, जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भाई साहब आपका बहुत कम एरिया होता है उनका, और बहुत कम एरिया होने के चलते ही भाई साहब उन पे प्रेशर आप ज्यादा एक्सर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये जो दीवार में कीला ठोकते हैं, तो कीले का जो पॉइंट होता है इस तरफ से ठोकते हैं या इस तरफ से? इस तरफ से मारेंगे तो भाई साहब नहीं जाएगा अंदर, इस तरफ से मारेंगे तो जाएगा अंदर। क्यों? क्योंकि इस पे जो प्रेशर रहेगा वो काफी ज्यादा होगा, इसका एरिया काफी कम है। प्रेशर क्या होता है वैसा, फोर्स अपॉन एरिया। आपका एरिया जितना ज्यादा कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो अ शार्प knife cuts better than a blunt one. The area of a sharp edge is much less than the area of a blunt edge. For the same total force, the effective force per unit area or pressure is more for the sharp edge than the blunt edge. Hence, a sharp knife cuts better. Railway tracks are laid on wooden sleepers. अगर आपने देखा होगा भाई साहब, ये ट्रैक्स हैं और ये वुडन स्लीपर्स होते हैं, वुडन स्लीपर्स, ठीक है, वुडन स्लीपर्स। ये आपके रेलवे ट्रैक्स हैं। ये रेलवे ट्रैक्स भाई साहब क्या होते हैं, वुडन स्लीपर्स में। ये वुडन स्लीपर्स से क्या होता है, इनका एरिया बढ़ जाता है। रेलवे ट्रैक्स में भाई साहब इनका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। इतनी जोर से भाई साहब ट्रेन आ रहा है कि अगर सिर्फ पटरी पे चले तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जमीन के नीचे चला जाए, ठीक है। ऐसा ना हो, इसीलिए उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हमने बड़े बड़े वुडन प्लैंक्स लगाए। आपने जो वुडन प्लैंक्स देखे हैं रेलवे ट्रैक्स पे होते हैं, वो वुडन प्लैंक्स क्यों होते हैं, इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए होते हैं। ये जो प्रेशर आ रहा है इसको रिड्यूस करने के लिए ये वुडन प्लैंक्स होते हैं। तो एक ट्रेन आ रहा है, भारी भरकम ट्रेन, बहुत हाई स्पीड से, ये नीचे जा सकता है, जमीन नीचे चली जा सकती है, तो ये वुडन प्लैंक्स इसको अवॉइड करते हैं, दिस वुडन प्लैंक्स, ठीक है। सो रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स, ठीक है। दिस स्प्रेड्स फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द ट्रेन on a large area and hence reduces the pressure considerably. This in turn prevents the yielding of the ground under the weight of the train. तो भाई साहब आपका जो ग्राउंड है उस पर प्रेशर कम लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड, अगर अभी ग्राउंड का क्या भरोसा भाई साहब, ठीक है, हो सकता है काफी पानी जमा हो और फट से नीचे चला जाए, ठीक है, ओके। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन सैंड व्हाइल अ कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड, ठीक है। आप अगर सैंड में चलने की कोशिश करेंगे आपका पैर धंस जाएगा। पैर क्यों धंस जाएगा? क्योंकि आपके पैर का एरिया कम है और वेट ज्यादा है, तो वो नीचे जाएगा। लेकिन कैमल्स का क्या होता है भाई साहब, उनका फुट ऐसे होता है, तो उनका फुट ऐसे होता है, उनका एरिया ज्यादा होता है। अगर एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, उनके बॉडी का प्रेशर कम होगा, ठीक है, बिकॉज द फुट का एरिया उनका ज्यादा है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये एरिया ज्यादा है, इसीलिए हम कैमल को भाई साहब क्या बोलते हैं, शिप है भाई साहब डेजर्ट का, ठीक है। तो it is difficult for a man to walk on sand while a camel walks easily on sand in spite of the fact that a camel is much heavier than a man. This is because a camel's feet have a larger area than the feet of the man. Due to this, a larger aerodynamic. Pins and nails are made to have pointed ends. Their pointed ends have very small area. When a force is applied over the head of the pin or a nail, it transmits a very large pressure on the surface and hence it easily penetrates the surface. तो ये भाई साहब easily penetrate करता है भाई साहब surface को, ठीक है। आपके ये बैग्स में भाई साहब जो स्ट्रैप्स होते हैं, अगर आप देखोगे भाई साहब ये आपका बैग है, ये स्ट्रैप्स बहुत चौड़े हैं, ठीक है। क्यों चौड़े हैं भाई साहब ये? ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम आए। हमारे टाइम पे जो बैग्स बनते थे उसके बहुत पतले स्ट्रैप्स होते थे, तो भाई साहब कभी कभी ये पूरा बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाता था इसमें, ठीक है। तो इससे आपके ऊपर प्रेशर कम आएगा, क्योंकि इसका एरिया जानबूझ के बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसका एरिया जानबूझ के बढ़ा दिया गया है ताकि यू फील लेस प्रेशर, ठीक है। So these are certain things that we have already studied in lower classes. Okay, the two high bones, femurs, ये वाला भाई साहब सवाल है, करना है। ये फेमूर बोन बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा बोन होता है इसको हम फेमूर बोन बोलते हैं, और हमारे शरीर का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। हमारे शरीर का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। इनफैक्ट एवोल्यूशन की थियरी में ये बोला जाता है कि एक ऐसा कॉप्स पाया गया था, एक ऐसी लाश मिली थी जिसके जो बोन्स हैं उसमें ट्रीटमेंट था। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि यहाँ से हमारा एवोल्यूशन चालू हुआ है,
क्योंकि ट्रीटमेंट मतलब किसी इंसान का उस टाइम पे बहुत पहले, इंसान मतलब वन जाति का इंसान होगा, मतलब कोई बानर होगा, ठीक है, तो उसका भाई साहब पैर टूटा रहेगा। अगर ट्रीटमेंट हुआ है मतलब कैसा होता है, देखो जब आपका हड्डी टूटता है तो हड्डी से फ्लूइड्स निकलते हैं और फिर वो जुड़ता है, ठीक है। आप जो प्लास्टर करते हैं उसका मकसद क्या है, आपकी हड्डियां मतलब उनके फ्लूइड से वो जुड़ती हैं। तो ऐसा जब एक लाश पाया गया बहुत पहले का, तो उसका फेमूर बेन ऐसा जुड़ा हुआ था, मतलब उसको ट्रीटमेंट मिला था, मतलब उसके जो आजू बाजू के लोग थे उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था। तो दैट इज कॉल्ड, मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये एवोल्यूशन हुआ था, यहां से एवोल्यूशन हुआ था, बिकॉज कंपैशन इज समथिंग दैट इज ओनली सीन इन ह्यूमन बींग्स एंड नॉट इन अदर स्पीशीज, ठीक है। ओके, खैर यहाँ पे द टू हाई बोन्स फेमूर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई साहब आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg, ठीक है। तो आपका मास कितना है भाई साहब 40 kg। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन बाय द फेमूर्स। अभी दो फेमूर्स हैं तो टोटल एरिया इनका कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 बाई भाई साहब कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होता है, पहले हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू भाई साहब 10⁻⁻² मीटर हो गया ये। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर, है ना। सो दैट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। मास कितना हो गया यहाँ पे 40 इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी 10, है ना, अपॉन 10 ले लेते हैं भाई साहब, टेक जी, ये दिया भी भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एरिया। एरिया कितना हो गया भाई साहब आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी लिख सकते हैं। 220 और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 20 इंटू 10⁻², ये हो गया 4 और ये 10⁻5, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 2 इंटू 10⁻6 पास्कल, ठीक है, 2 इंटू 10⁻6 पास्कल। आपके फेमूर बोन्स पे हमेशा इतना प्रेशर लग रहा है जब आप खड़े हैं तो, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर इट इज बेसिकली एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। ओके ओके ओके, हाउ मच प्रेशर विल अ मैन ऑफ वेट 80 kgf, 80 kgf मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब 1 kgf मतलब 1 किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब 1 किलोग्राम फोर्स इज 1 इंटू 10 या 9.8 जैसा आप लें, ठीक है, 1 kg और फोर्स मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो हाउ मच प्रेशर विल अ मैन ऑफ 80 kgf exert on the ground when he is lying and when he is standing on his feet, given that the area of the body of the man is 0.6 meter square and that of its foot is 80 centimeter square। निकाल लेंगे भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट सवाल है ना। ओके, सो व्हेन अ मैन इज बेसिकली लाइंग, ठीक है, इसका एरिया भाई साहब कितना है, एरिया है इसके पूरे बॉडी का कितना 0.6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका प्रेशर कितना हो जाएगा फोर्स दैट इज 80 kgf, 80 इंटू 80 kg और आप g को वैल्यू ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन, और यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 0.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो भी आंसर आवे भाई साहब 80 या 800 इंटू 10/6, ये हो गया 400 और ये हो गया भाई साहब 3। अभी इसका जो भी वैल्यू है वो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, पास्कल। और अगर आपका भाई साहब फुट पे खड़ा हुआ है वो इंसान, ठीक है, इफ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फुट, तो एरिया एंड दैट ऑफ अ फुट, 1 फुट का इतना है, तो 2 फुट का कितना हो जाएगा भाई साहब 2 फुट का हो जाएगा 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 2 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। सो दैट विल बी 16, एक जीरो को यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच 8 इंटू 10 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे दिस प्रेशर विल बी हायर देन दिस प्रेशर, ठीक है, दिस प्रेशर विल बी हायर देन दिस प्रेशर। अगर आप ईंट को ऐसे खड़ा करेंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ईंटे को ऐसे करेंगे तो उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, डेंसिटी क्या होती है भाई साहब, द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम।
इफ अ बॉडी ऑफ मास m ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम देन इट्स डेंसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम kg पर मीटर क्यूबिक। डेंसिटी, ये सारी चीजें हम फिर से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे, आगे चल के भाई साहब हम यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे, इन सब चीजों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ओके, डेंसिटी इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सो एक स्केलर क्वांटिटी है। एज लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल देयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्रेशर्स, तो इनका भाई साहब डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी कितना है भाई साहब, केजी पर मीटर क्यूबिक। सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी कितना होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब, मास यहाँ पे, और ये क्या है आपका एल का क्यूब, सो दिस विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका ml-3। सिंपल भाई साहब, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, जब आप वाटर के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, वाटर की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी भाई साहब, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे देयर इज अ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसका एबनॉर्मल एक्सपेंशन है, तो हम सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर को ही कंपेयर करेंगे। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज हाउ मच, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूबिक, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, the specific gravity or relative density of a substance is defined as the ratio of the density of the substance to the density of water at 4 degrees centigrade. The density of water at 4 degrees centigrade is 1 into 10 raised to 3 kg per meter cubic, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ डायमेंशनलेस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्यों है, क्योंकि इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में होगा, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में होगा, तो इसीलिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, अगर डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस निकालना है तो क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर 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 पीपल। ओके ओके ओके, ये कुछ सब्सटेंसेस हैं भाई साहब जिनके डेंसिटीज दिए हुए हैं आपको। वाटर की डेंसिटी 1 into 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। सी वाटर की डेंसिटी थोड़ा सा हाइयर है और इसीलिए स्विमिंग आप सी वाटर में ज्यादा आसानी से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको अपथ्रस्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर रादर देन इन फ्रेश वाटर। इसीलिए देखो, आपको अगर स्विमिंग सीखना होगा तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू लर्न इट इन स्विमिंग पूल ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि फ्रेश वाटर में स्विम करना ज्यादा मुश्किल है, अपने आप को फ्लोट कराना, क्योंकि फ्रेश वाटर की डेंसिटी इतनी है और सी वाटर की डेंसिटी इतनी है, ठीक है। सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। मरकरी 13.6, मरकरी में अगर आप अपने आप को रख देंगे तो वो आप फ्लोट करेंगे, यू विल नॉट सिंक, ठीक है। उसकी डेंसिटी 13.6 into 10⁻³ है। इथाइल अल्कोहल भाई साहब, इसकी ये इसमें अगर आप डूबेंगे तो पूरा ही डूब जाएंगे, ठीक है, नशे में भी और ऐसे में भी, ठीक है। तो ये 0.806 है भाई साहब, ये ऐसे भी वाटर से इसका कम है, ठीक है। होल ब्लड, आपका ब्लड का जो डेंसिटी है वो 1.06 into 10⁻³ है, ठीक है, आपका ब्लड का डेंसिटी है, ठीक है। एयर 1.29, ऑक्सीजन 1. यहाँ पे होल ब्लड क्यों बोला है, एनी रीजन? होल ब्लड, पूरा खून, क्यों ऐसा, क्यों पूरा खून क्यों बोला है, आधा खून, 1/4 खून, ऐसा क्यों नहीं? होल ब्लड, देखो समझ लो मेरा हाथ में कहीं पे कट गया, वहां से खून निकल रहा है, ठीक है। अभी इस चीज को समझिए कि मेरे हाथ से ब्लड गया है और ये ब्लड बाहर निकल रहा होगा, है ना। तो आर्टरी से कभी खून नहीं निकलता है, जनरली आपके वीन्स से ही खून निकलता है, अगर कहीं पे वीन्स का कोई कटा होगा, लेकिन आर्टरीज तक आप जाते नहीं है कभी भी ज्यादा करके, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज आपके डीप डाउन बॉडी में होते हैं और वहां अगर कट गया तो भाई साहब फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट डॉक्टर्स को भी बहुत सावधानी से कट्टम कुट्टम करनी पड़ती है, उनका अगर गलती से भी आर्टरी कट गया तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जब ब्लड भाई साहब क्या कर रहा है, सारी चीजों को बांटता हुआ फिर वो जाता है किसमें, हार्ट में, तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर वो सारी चीजों को बांट कर आया तो उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी ना। जब वो फ्रेश निकला होगा हार्ट से तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसमें भाई साहब न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें भाई साहब आपके ऑक्सीजन है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए पूरे शरीर के ब्लड को अगर हम देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच।
एयर की डेंसिटी है भाई साहब, ऑक्सीजन की डेंसिटी है, हाइड्रोजन की डेंसिटी है, इंटरस्टेलर स्पेस जहां पे स्टार्स बनते हैं उनकी डेंसिटी भाई साहब कितनी है 10⁻20। कोई डेंसिटी नहीं है भाई साहब वहां पे, देयर इज नो डेंसिटी एट ऑल, ठीक है। इंटरस्टेलर स्पेस वेयर इन द स्टार्स स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है, वहां पे स्टार्स का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। ओके, सो अभी हम आते हैं भाई साहब पास्कल रास्कल लॉ, ठीक है। ओके, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? पास्कल्स लॉ, दिस लॉ टेल्स अस हाउ प्रेशर कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फ्लूइड। एक फ्लूइड में भाई साहब प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है ये हमको बताता है, ठीक है। It can be stated in a number of equivalent ways. The pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions. ठीक है, सारे डायरेक्शंस में भाई साहब इक्वली ट्रांसमिट होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर देखोगे लिक्विड के अंदर, इधर 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 सब सेम होगा, ठीक है। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड, the pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions. A change in pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the, तो आपने समझ लो भाई साहब कोई एक यहाँ पे फ्लूइड लिया हुआ है और इसमें इस पॉइंट पे आपने चेंज इन प्रेशर डाला हुआ है, या समझ लो यहाँ से आप प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं, ये वाला जो प्रेशर आपने डाला ये पूरे लिक्विड में फैल जाएगा। दिस विल एक्चुअली पूरे लिक्विड में फैल जाएगा, पूरे फ्लूइड में। कोई बलून है, बलून, ठीक है भाई साहब, इसको तुम ऐसे ऐसे करने पिचकाने की कोशिश कर रहे हो तो आप देखोगे भाई साहब ये ऐसे फूल जाएगा, ठीक है नहीं। व्हाट विल हैपन, दैट प्रेशर इज डेसिपेटेड इक्वली, ठीक है। आप उसको एक जगह से पिचकाने की कोशिश करोगे वो पूरे दूसरे जगह से ऐसे फूल जाएगा, तो दैट प्रेशर इज बेसिकली डेसिपेटेड, ठीक है, ये प्रेशर पूरा उधर जाएगा। अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the containing vessel. The pressure in a fluid at rest is same at all points if we ignore gravity. Proof of Pascal's law. Pascal's law can be proved by using two principles. The force on any layer of a fluid at rest is normal to the layer. तो आपका जो कोई भी लेयर है, ठीक है, the force on any layer of a fluid at rest is normal to the layer, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर देखोगे भाई साहब आपका देखो ये एक सेगमेंट है शोन, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ लिया हुआ है हमने, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म। एक हमने एक एलिमेंट लिया हुआ है सिंपल सा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपका एक फोर्स आपका नीचे से आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स ले रहे हो। द फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द लेयर, ठीक है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ अ फ्लूइड इज एट रेस्ट, द एलिमेंट इज सो स्मॉल that its part can be assumed to be at same depth from the liquid surface and therefore the effect of gravity for all of its points, it has the same effect of gravity is same for all of its points। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है ये इतना छोटा आपने एलिमेंट लिया है कि सारे पॉइंट्स में ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम आप मान सकते हैं। देखो ग्रेविटी की इफेक्ट कब डिफरेंट होती है, जब हाइट डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंसिडरेबल हाइट का डिफरेंस नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि सारे पॉइंट्स में हाइट सेम ही है, ठीक है। सपोज द फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर पी ए पी बी एंड पी सी, ठीक है, आपका पी ए यहाँ पे प्रेशर हो रहा है भाई साहब पी ए पी बी एंड पी सी ऑन द सर्फेसेस, कौन कौन से सर्फेसेस, बी एफ सी, ए डी एफ सी एंड ए डी ई बी, ठीक है, ए बी ए बी सी डी। भाई साहब इसमें आपका फोर्स एफ ए, इसमें आपका फोर्स एफ बी, इसमें आपका फोर्स एफ सी, तो आपका प्रेशर पी सी इस पे हो जाएगा भाई साहब, प्रेशर एफ ए इस पे हो जाएगा और प्रेशर एफ बी इस पे हो जाएगा, दी ज्यादा, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे एफ बी की बात अगर हम करें, दिस इज बेसिकली एफ बी का अगर हम ये वाला कंपोनेंट निकालें, ये एफ बी आ रहा है देखो इस तरह से, एफ बी इज कमिंग लाइक दिस, तो ये एफ बी है, ठीक है। तो एफ बी का अगर हम कंपोनेंट निकालें इस तरफ कितना होगा, एफ बी साइन थीटा
और इस तरफ कितना हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा, सिर्फ एफ बी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालू यहाँ पे तो ये ऐसे आ रहा है भाई साहब, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। लेट्स से हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा बन रहा है, तो ये बन जाएगा आपका एफ बी कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका एफ बी साइन थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके ओके ओके। सो एज द पेरिज्मेटिक एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाई साहब फोर्स क्या है, देखो हमने जो आपका एलिमेंट लिया था, ऐसा एलिमेंट लिया था, है ना, यहां पे आपका क्या लग रहा है एफ बी, यहां पे आपका भाई साहब क्या लग रहा है एफ सी, है ना भाई साहब, यही लग रहा था ना एफ सी, ये वाला सरफेस क्या था एफ सी, और यहां पे भाई साहब आपका क्या लग रहा है एफ ए, ठीक है। ये किसी लिक्विड के अंदर लग रहा है भाई साहब ये फोर्सेस, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब बताओ भाई साहब ये हो गया एफ बी, ठीक है, एफ ए किस तरफ है, इस तरफ है ना, एफ ए इस तरफ है, और ये क्या है भाई साहब आपका, ये है एफ बी, और ये क्या हो गया एफ बी कॉस थीटा, और ये भाई साहब कितना हो गया एफ बी साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा है भाई साहब एफ सी। लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल, और अभी आपको दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रहे हैं, मतलब यहां पे एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी की वैल्यू हो जाएगी एफ बी साइन थीटा। समझ में आता हूं, ठीक है, एफ सी इधर है, एफ बी साइन थीटा इधर है, तो ये दोनों बराबर। और वर्टिकल फोर्सेस विल आल्सो बी इक्वल, वर्टिकल फोर्सेस में भाई साहब आपका एफ ए ऊपर की तरफ है और एफ बी कॉस थीटा नीचे की तरफ है, ठीक है। तो एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी कॉस ऑफ थीटा। समझ में आता हूं पीपल हम, ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी कैन से दैट ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी। अभी देखो ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखो इसको देखो भाई साहब, यहां पे ए बी साइन थीटा, ये एरिया है भाई, एरिया देखो यहां पे ये वाला एरिया है, देखो ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब, ये एरिया, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एरिया की बात कर रहे हैं, और इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, और इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एरियाज, क्योंकि फोर्स इन एरियाज पे लग रहा है, फोर्स भाई साहब इन एरियाज पे लग रहा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल हम। और ये आपका भाई साहब क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है भाई साहब, ये एक एरिया है, ठीक है, ये भाई साहब एक एरिया है और ये एक एरिया है, ठीक है। अभी फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी गेट ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी। देखो ए बी साइन थीटा, ए ये आपका ए सी हो गया, एरिया ऑफ सी, ये हो गया भाई साहब एरिया ऑफ बी, और ये हो गया लेट्स से नहीं एरिया ऑफ बी ये हो गया भाई साहब, और एरिया ऑफ ए ये हो गया। समझ में आ रहा है, ये नीचे वाला हो गया एरिया ऑफ ए, ये ऐसा स्लांटिंग वाला हो गया एरिया ऑफ बी, और ये वाला हो गया आपका एरिया ऑफ सी। ये वाला एंगल भाई साहब कितना है आपका थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। सो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी। क्यों नहीं होगा भाई साहब, देखो यहां पे अगर हम करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी बाई ए बी, ये कितना होगा साइन थीटा होगा कि नहीं, समझम। तो आपका भाई साहब ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा। इसी तरह से भाई साहब आपका अगर करोगे ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बाई ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपका भाई साहब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। आर वी क्लियर हम पीपल हम, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई फ्रॉम द अबव इक्वेशंस। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, एफ बी साइन थीटा बाई ए बी साइन थीटा कर रहे हैं, इसको उठा लिया हमने, ठीक है, और इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, एफ बी बाई ए बी साइन थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी बाई ए सी, ठीक है। एफ बी कॉस थीटा बाई ए बी कॉस थीटा, एफ ए बाई ए। अब भाई साहब यहां पे दोनों कैंसिल हो गए, तो एफ ए बाई ए विल बी इक्वल टू एफ बी बाई ए बी, एफ सी बाई ए सी। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी, ठीक है। हेंस प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सेम होता है इन ऑल डायरेक्शंस इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। दिस प्रूव्स पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। तो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है इट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस। एक पॉइंट को अगर हम कंसीडर करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट को, तो उससे अपन प्रूव कर सकते हैं दैट प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। The above discussion again shows that pressure is not a vector quantity. No directions can be assigned to it. तो इसमें भाई साहब कोई भी डायरेक्शन आप असाइन नहीं कर सकते हैं प्रेशर में।
Okay, thank you so much for your valuable time, people. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडम। ओके ओके ओके, तो अभी देखो ये अपना राजू है ना, राजू, उसका बिल्डिंग के नीचे ये होता है, कार वॉश होता है कि नहीं। सो कार वॉश या ये सब जो होते हैं, ये किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑन विच तो उसमें बहुत जोर से पानी बाहर आता है, देखो, ठीक है। इट्स अ वेरी, एक जेट से पानी बाहर आता है। सो हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो अभी समझ लो, यहाँ पे आपने एक वाटर का टैंक लिया हुआ है, इसका एरिया है, समझ लो, ठीक है। देयर इज एन एरिया फॉर दिस, देयर इज एन एरिया फॉर दिस एंड देयर इज एन एरिया फॉर दिस, ठीक है। तो लेट्स से आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, टेक अ वेसल हैविंग 3 ओपनिंग्स। तो इसके 3 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। इसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इसके 3 ओपनिंग्स हैं, देखो, दिस इज 1 ओपनिंग, दिस इज द अदर ओपनिंग एंड दिस इज द थर्ड ओपनिंग, ठीक है। ओके, ओपनिंग्स ए बी एंड सी। तो ये आपके भाई साहब 3 ओपनिंग्स हो गए, कौन कौन से, ए बी और सी, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड विथ फ्रिक्शनलेस एंड वाटर टाइट पिस्टन्स। फ्रिक्शनलेस है और वाटर टाइट है, मतलब इधर से पानी का लीकेज नहीं होगा, ठीक है। वाटर टाइट पिस्टन्स हैं, ना ही ऊपर से ना ही नीचे से पानी का कोई लीकेज होगा। सो दीज आर वाटर टाइट पिस्टन्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। लेट द क्रॉस सेक्शनल एरियाज बी। अभी जो ए में वाला पिस्टन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भाई साहब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जहां ए पोजीशन पे जो पिस्टन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है ए, ठीक है। लेट द क्रॉस सेक्शनल एरियाज बी ए, और ये वाला एरिया कितना दिया हुआ है भाई साहब आपको, 2a, ठीक है। द पिस्टन एट बी हैज एन एरिया ऑफ 2a एंड द पिस्टन एट सी हैज एन एरिया ऑफ a/2। क्लियरम पीपलम, क्लियरम क्लियरम क्लियरम। तो ये आपके 3 पिस्टन्स हो गए और ये आपके 3 एरियाज हो गए, ठीक है। फिल द वेसल विथ वाटर एंड अप्लाई एन एडिशनल फोर्स F ऑन पिस्टन A। तो आप भाई साहब यहाँ पे पिस्टन A पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F, ठीक है। आपने जो कल पास्कल्स लॉ पढ़ा, उसमें आपने क्या पढ़ा कि भाई साहब कोई एक पॉइंट पे फ्लूइड पे प्रेशर सब इक्वल होंगे ऑल डायरेक्शंस में, और इसीलिए आप प्रेशर को क्या ले रहे हैं, एक स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं, बिकॉज एट एनी पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड द प्रेशर विल बी द सेम इन ऑल डायरेक्शंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये पास्कल्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। यहां पे इस पिस्टन पे आपने फोर्स F अप्लाई किया हुआ है, इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, ठीक है। इस पिस्टन पे आपने फोर्स कितना अप्लाई किया हुआ है, 2F, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने कितना रखा हुआ है, 2A। इस पिस्टन पे आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, A/2, और फोर्स कितना अप्लाई किया हुआ है, F/2, ठीक है। ओके, फिल द वेसल विथ वाटर एंड अप्लाई एन एडिशनल फोर्स F ऑन पिस्टन A। तो पिस्टन A पे एडिशनल फोर्स टू कीप द पिस्टन्स B एंड C इन देयर पोजीशंस। तो आपको B और C को अगर पोजीशन पे रखना है, फोर्सेस इक्वल टू 2F एंड F/2। तो आपको भाई साहब फोर्सेस इक्वल टू F/2 एंड 2F respectively have to be applied on them. This shows that the pressure is transmitted equally in all directions. तो आप देखोगे कि भाई साहब अगर इन दोनों पिस्टन्स को, देखो मैंने यहां पे कितना फोर्स डाला हुआ है, F, इन दोनों पिस्टन्स को अगर मुझे रखना है अपने जगह पे, तो आपको इधर 2F डालना पड़ेगा और इधर F/2 फोर्स डालना पड़ेगा, तभी जाकर ये अपने जगह पे रहेंगे, वरना टुबुक से ऊपर जाएंगे। यहां पे जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहां पे कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, बोलो, व्हाट इज द प्रेशर यू आर क्रिएटिंग एट A, बोलो कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया F/A, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहां पे अगर आपने कितना एरिया लिया हुआ है, 2A, तो आपको भाई साहब फोर्स, आपका भाई साहब ये प्रेशर यहां पे सेम होगा, प्रेशर एट A विल बी इक्वल टू, यही प्रेशर भाई साहब इधर जाएगा, ये जो प्रेशर आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो, यही प्रेशर इक्वली डिसिपेट होगा इधर भी और भाई साहब इधर भी, यही प्रेशर ऊपर ट्रेवल होगा, ठीक है। दिस प्रेशर इज गोइंग टू डिसिपेट, ठीक है, इधर भी और इधर भी। और यही होता है, देखो अगर आप देख रहे हो ना, आप अगर कोस्टल एरिया में रहते हो तो एक खतरा आपको है कि आपका सुनामी आने के चांसेस होते हैं।
सुनामी में बेसिकली होता क्या है, डीप डाउन इन द सी समवेयर आपका वेव जनरेट हुए, तो ये जो कंपन जनरेट हुआ ये वेव जनरेट हुआ भाई साहब, ठीक है। और यही वेव ऊपर जाकर एक तो थोड़ा सा वेव बनेगा, ऐसे ऊपर एक थोड़ा सा जोर से वेव आएगा, यही वेव दूसरे वेव के साथ कंबाइन करेगा, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, जब तक ये कोस्टल एरिया में आएगा भाई साहब 30-40 फीट का वेट बन के आएगा, एंड दैट कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है यही ऊपर जाएगा, सेम प्रेशर विल गो, प्रेशर अनडेसिपेटेड विल गो, अनडिस्टर्ब विल बी गोइंग थ्रू ऑल डायरेक्शंस। तो आपने यहाँ पे इस फोर्स के चलते कितना प्रेशर क्रिएट किया है, F/A। यहां पे तुम्हारा एरिया कितना है भाई साहब, 2A। तुम्हें अगर प्रेशर यहां पे, तो हम यहां पे बोलेंगे PA विल बी इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। मुझे यहां पे मालूम है PB इज इक्वल टू, लेट्स से एरिया तो अपन को मालूम है, इसको अगर हम F' लेते हैं तो अगर मैं यहां पे करता हूं भाई साहब F'/2A विल बी इक्वल टू PA, है ना। तो कितना हो जाएगा बोलो, F'/2A विल बी इक्वल टू कितना, F/A। बताओ भाई साहब, इसको अगर मुझे करना है तो यहां पे क्या होना चाहिए, दिस विल बी 2, है ना। ये F' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये A और A कैंसिल हो गया, F' की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 2F। आप देखोगे बराबर आप यहां पे 2F का प्रेशर अगर अप्लाई करोगे तो ही ये पिस्टन अपनी जगह पे रहेगा, वरना टुपुक, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। सो यू हैव टू अप्लाई अ प्रेशर ऑफ 2F ऑन दिस पिस्टन in order to keep it in place. In order to keep this piston in place, you have to apply a pressure of 2F. Are we clear to this one, people? हम बहुत बढ़िया भाई साहब। अभी हम इसमें आते हैं, ठीक है। यहां पे भी वही होगा, देखो PC will be equal to PA, समझो कि नहीं। PC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, फोर्स, ठीक है। PC की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। PC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपका, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मतलब PA की वैल्यू फोर्स अपॉन एरिया है। चलिए PC पे आते हैं, ठीक है। PC पे आपने भाई साहब एरिया कितना लिया हुआ है, A/2, ठीक है। ये PC की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है, A/2। इसका चलो हमको नहीं मालूम, F', ठीक है। ये AM कैंसिलम, ठीक है, क्लियर है। तो इस 2 को आप इधर कर लीजिए, तो F' की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, F' की वैल्यू हो जाएगी F इंटू 1/2। ये 1/2 को ऊपर ले रहे हैं आप, ठीक है। तो F' की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, F/2। ये तो आपने न्यूमेरिकली निकाला, थियोरेटिकली भी आपको यही दिखेगा, एक्सपेरिमेंटली भी आपको यही दिखेगा कि जब यहां पे आपको प्रेशर अगर इस पिस्टन को अपनी जगह पे रखना है तो इसका आधा फोर्स आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। और ये जो मैं इनकी बिल्डिंग के नीचे की बात कर रहा था, जो हाइड्रोलिक जो आपके मशीन्स होते हैं जहां से आप भाई साहब वाटर को, तो वाटर कहां रहता है, टैंक में रहता है, ठीक है। वाटर टैंक में रहता है। यहां पे क्या करेंगे आप, एक ऐसा ओपनिंग रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे समझो, ठीक है। लेट्स से आपका ये टैंक है वाटर, ठीक है, और यहां पे एक और यहां पे एक है, ठीक है। इस वाले का भाई साहब आप क्या करोगे, इस वाले का एरिया यहां से आप प्रेशराइज करोगे इसको। तो ज्यादा प्रेशर अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे भाई साहब, यू हैव टू हैव अ नैरो ओपनिंग, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब आपका यहाँ पे एरिया को बहुत कम रखोगे आप, और यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ऐसा इसका आप घुमाओगे ना तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, ये नीचे जाएगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और ये प्रेशर क्रिएट होता हुआ भाई साहब इधर से निकलेगा। तो आप यही वाला जो है आपका स्प्रिंकलर हो गया जाएगा भाई साहब इन लोगों को, मतलब जब गाड़ी उड़ी धोएंगे आप, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज अप्लाइड, ठीक है। सो दिस इज अ हाइड्रोलिक मशीन, ओके। सो this shows that the pressure is transmitted equally in all directions because P is equal to F/A, 2F/2A, F/2/A/2, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है किसका भाई साहब, पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट अगर आप देखते हो, यही है, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर आपने देखा रहेगा गाड़ियों को धोने के टाइम पे आप क्या करते हैं, गाड़ी को ऊंचा करते हैं ना, है कि नहीं। फोर व्हीलर ऐसे भाई साहब ऊंचा होता है, वैसा फिर उसको नीचे ऐसा पानी डाल रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो मैकेनिज्म क्या है भाई साहब, यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये आपको जहां पे भी कार वॉशिंग होती रहेगी ना वहां पे ये होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स, इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स का आपको बढ़ा देगा, ये आपका फोर्स को बढ़ा देगा, ठीक है। हाउ विल यू डू दिस, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर्स हैं, देखो C1 एंड C2 कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ पाइप, और यहाँ पे वैसा पाइप है, वाटर ही रहेगा ज्यादा करके, ठीक है। ये एक लिक्विड है और ये दोनों सिलेंडर्स हैं, ये आपका एक सिलेंडर C1 और ये आपका एक सिलेंडर C2, ठीक है। इसका भाई साहब एक एरिया है और इसका भाई साहब एरिया है, ये लोड है यहाँ पे, यही गाड़ी जो है तो ऊपर होती जाएगी, देखो इस गाड़ी को ऊपर रखेंगे तो ये लोड लेके उसको ऊपर कर देगा, ठीक है, ओके।
The cylinders are fitted with watertight frictionless pistons of different cross-sectional areas. The cylinders and the pipe contain a liquid. Suppose a force F is applied on the smaller piston of cross-sectional area A. तो आपका स्मॉलर पिस्टन है, तो प्रेशर मतलब स्मॉलर पिस्टन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने स्मॉल लिया हुआ है, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना कम होगा भाई साहब, प्रेशर उतना ज्यादा जनरेट होगा भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर जनरेट होगा इस लिक्विड में, और जब भी आप किसी लिक्विड में प्रेशर डालते हो तो वो प्रेशर भाई साहब पूरे लिक्विड में फैल जाता है। अब यही प्रेशर भाई साहब यहां तक आ जाएगा, समझ में आ रहा है भाई साहब? यही प्रेशर आपका यहां तक आ जाएगा, ठीक है, ओके। And the pipe. Suppose a force F is applied on the smaller piston of cross-sectional area A. तो क्या हो जाएगा भाई साहब? Then pressure exerted on the liquid will be how much? P is equal to F by A. Simple, okay. According to Pascal's law, the same pressure P is transmitted to the larger piston. तो भाई साहब ये larger piston में travel होगा भाई साहब, ठीक है। This same pressure will actually, Pascal's law, the same pressure P is also transmitted to the larger piston of cross-sectional area. यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ये पूरा ही प्रेशर। जब भी आप किसी लिक्विड पे प्रेशर डाल रहे हो, वो प्रेशर भाई साहब पूरा डेसिपेट हो जाएगा विदाउट एनी डिमिनिशिंग, कोई उसमें वैल्यू में कम नहीं होगा। इट विल एक्चुअली गो अनडिमिनिश्ड पोर्शन से वो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन कितना हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया, F by A इनटू A भाई साहब, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बराबर होगा, समझम। ये वाला प्रेशर F इज इक्वल टू P इंटू A, तो ये कितना हो जाएगा? प्रेशर कितना हो गया भाई साहब? F by A इंटू A, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे? F by A, तो A by A इंटू F लिख सकते हैं कि नहीं भाई? देखो F by A इंटू A, इस A को इधर कर लो तो A by A इंटू F लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो अभी देखो कैपिटल A को आप जितना बड़ा रखोगे और स्मॉल A को जितना छोटा रखोगे, समझ में आ रहा है? देखो आपका फोर्स, यहां पे आपका फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू, ये मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? A बाई A इंटू F। यहां पे तुम ये फोर्स लगा रहे हो F, छोटे से फोर्स से आप एक बड़ा सा फोर्स जनरेट कर रहे हो। इधर जो आप F डैश जनरेट कर रहे हो, दैट इज क्योंकि आप इसका एरिया जितना ज्यादा रखोगे और इसका जितना कम, उतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब आपने छोटा सा प्रेशर यहां पे अप्लाई किया, लेकिन यही प्रेशर लिक्विड से यहां पे डिसिपेट होके आया by Pascal's law, and this force will be much higher. The higher is the difference between A and A. जितना भाई साहब आपका ये वाला A से बड़ा होगा, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। Is this understood people? हम ठीक है, आपने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एरिया क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया F, एक फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे आपका एक बड़ा सा लोड है, तो ज्यादा फोर्स आपको क्रिएट करना है, ठीक है। ज्यादा फोर्स अगर आपको क्रिएट करना है तो आपने जो भी प्रेशर यहां पे क्रिएट किया, यही प्रेशर ट्रैवल होता हुआ यहां जाएगा। और इसका एरिया बड़ा रखो, इसका एरिया अगर बड़ा रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो ये वाला प्रेशर क्या है? ये वाला प्रेशर क्या है भाई साहब? आपका फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पे भी प्रेशर क्या होगा? P एट A, समझ लो ये पॉइंट A है, ठीक है, लेट्स से PC1 है, ठीक है, ये हो गया F बाई A। और PC2 ये क्या होगा भाई साहब? बोलो ना, बोलो, F बाई A। समझम। क्या ये दोनों बराबर होंगे बाई पास्कल्स लॉ? यस, दे विल बी इक्वल। तो आपका PC1 विल बी इक्वल टू PC2। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं बच्चा बाड़ी? ये हो गया भाई साहब आपका F बाई A PC1, ठीक है, सॉरी आपका ये वाला है ना A, इसका A तो भाई साहब छोटा वाला A, ठीक है, इज इक्वल टू F बाई A। ये वाला फोर्स यहां पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स जो यहां पे जनरेट हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? F, ये A को इधर ले लो भाई साहब, अरे यार स्मॉल ले, ठीक है, F बाई A इंटू A। तो A बाई A भाई साहब, ठीक है, ये तो आप एक फोर्स जनरेट कर रहे हो, और यहां पे क्या है? कैपिटल A बाई स्मॉलम AM, ठीक है। कैपिटल A बाई स्मॉल A, कैपिटल A की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी और स्मॉल a की वैल्यू जितनी कम होगी, ये फोर्स जनरेशन उतना ही ज्यादा होगा। द मोर विल बी द फोर्स जनरेटेड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सिंस A is greater than A, therefore F is greater than F. Hence, by making the ratio A by A large, very heavy loads like cars and trucks can be lifted by the application of small force. However, there is no gain of work. The work done by the F is equal to the work done by F. कोई गेन, देखो वर्क डन मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी जनरेट कर रहे हो आप, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं जनरेट कर रहे आप, प्रेशर का खेल है।
यहां पे आपने एक प्रेशर अप्लाई किया, यही प्रेशर यहां पे जाके आया, लेकिन ये सेम प्रेशर जब इधर आ रहा है तो इसका फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, इसका फोर्स भाई साहब बढ़ रहा है। क्यों फोर्स बढ़ रहा है? क्योंकि अपना भाई साहब एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए फोर्स भी बढ़ना पड़ेगा। यहां पे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यहां पे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यहां पे एरिया कम फोर्स कम लग रहा है आपको, और यहां पे भाई साहब एरिया ज्यादा, तो अकॉर्डिंगली भाई साहब प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक छोटे से फोर्स से एक बड़े से लोड को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये जो कार और धोते हैं तो इसी से वो उधर बंदा उसको घुमाता है और ये कार भाई साहब अपने आप ऊपर जाता है। तो जब बंदा घुमा रहा है इसको तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसको प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये पिस्टन नीचे जा रहा है और ये पिस्टन नीचे जाएगा तो ये जो प्रेशर जनरेट करेगा, दिस प्रेशर विल एक्ट ऑन दिस व्हीकल टू बी लिफ्टेड, ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। द पिस्टन P1 हैज टू बी मूव डाउन बाय अ लार्जर डिस्टेंस कंपेयर टू द डिस्टेंस मूव्ड अप बाय पिस्टन P2। तो मतलब ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस जाएगा जाके आपका प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो ताकि ये ऊपर उठे। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई साहब अभी सवाल पे सवाल। इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ द कार लिफ्ट है भाई साहब, यही सेम सिस्टम है, ठीक है। तो लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स F1 ऑन स्मॉल पिस्टन हैविंग अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब वैसा ही है, ये आपका हो गया भाई साहब स्मॉल लिफ्ट। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब यहां पे है आपका हैविंग रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, R1 की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं भाई साहब, है ना, रेडियस हो गया ये, ओके। अ कार लिफ्ट अ कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स अ फोर्स F1, तो ये भाई साहब है आपका F1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन हैविंग अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस, यहां पे भाई साहब रेडियस कितना है आपका, R2 का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, 15 इंटू 10⁻²⁻² मीटर, ठीक है। इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज हाउ मच, अभी यहां पे एक कार है भाई साहब, ठीक है, इस कार का मास भाई साहब आपको कितना दिया हुआ है, इस कार का मास दिया हुआ है 1350 kg, दिस हैज टू बी लिफ्टेड, ठीक है। व्हाट इज F1, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई साहब, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क, टेक G इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। अगर इसको भाई साहब लिफ्ट करना है तो आपको इसको लिफ्ट करना है मतलब किसी एक्सेलरेशन से नहीं ऊपर करना है, मतलब कम से कम इसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहां पे आपको कितना मिनिमम फोर्स चाहिए रहेगा भाई साहब, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू G, ठीक है। तो दैट विल बी हाउ मच, 1350 इंटू 9.81, अच्छा अभी 1 भी डाल दिया है, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसका एरिया कितना बोलो, देखो सिंपल, ये वाला प्रेशर देखो P1, ठीक है, ये वाला जो प्रेशर है भाई साहब F1, यहां पे लेट्स से P1 F1 और ये A1 हो गया, इसका अपन लिख देते हैं F2, ये P1 ही रहेगा है कि नहीं, P2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, P1 की वैल्यू P2 के बराबर हो गई बाय रस्कल्स लॉ, नहीं पास्कल्स लॉ, अरे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, पास्कल्स लॉ, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम इज्जत में लीजिए, ठीक है भाई, पास्कल्स लॉ, क्लियरम। P1 मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका F1 बाई A1, ठीक है, दिस वन विल बी इक्वल टू F2 बाई A2, ठीक है। F1 की वैल्यू भाई साहब आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे A1 की वैल्यू बचा कितना हो जाएगा F1, ये हो गया आपका F1, तो F1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, F2 बाई A2 इंटू A1, है ना। F2 की वैल्यू कितनी आई 1350 इंटू 9.81, सो F1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1350 इंटू 9.81, A1 की वैल्यू भाई साहब बोलो भाई साहब पाई R1 का स्क्वायर, है ना। तो मतलब अपन लिख सकते हैं पाई इंटू, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 22/7 या 3.142 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि नीचे का पाई और ऊपर का पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया भाई साहब, पाई R का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, क्या यहां पे 5 को भी चेंज करने की जरूरत थी, एक्चुअली नहीं है,
सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट का अपन को यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² या 15 इंटू 10⁻⁻² ना लिखें तो भी कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 5 का स्क्वायर, टड़ंग टड़ंग 5 का स्क्वायर। ओके भाई साहब, तो की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 15 का स्क्वायर। ओके ओके ओके, तो अपन का यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई और पाई भाई साहब हो गया कैंसिल। 25/1 कितना होता है भाई साहब 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 25/225 1350 इंटू 9.81 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। हाँ जी, इससे जाएगा क्या 5 6 7 8 1 9 जाएगा ना, ये 3 4 जा 12 और यहाँ पे हो गया भाई साहब 3 5 जा 15 और 0 और ये हो गया 3 15 जा, है ना। तो ये हो गया कितना भाई साहब 150 इंटू 9.81, ठीक है। सो F1 की वैल्यू ये न्यूटन में आएगी भाई साहब, ठीक है, ये न्यूटन में आ जाएगा। आप बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर से कहाँ आप न्यूटन निकाल रहे हो, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर था, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे था, दोनों भी भाई साहब कैंसिल हो गए। सो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे कितना मिल रहा है केजी, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है आपका न्यूटन। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आया आपका भाई साहब 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, बहुत आसान भाई साहब। तो मतलब इन लोगों ने 10 माना ही नहीं है, मतलब 9.81 ही नहीं माना है, तो इन्होंने लिख दिया भाई साहब 1.5। अगर हम इसको 10 मानते हैं, अगर हमने भाई साहब इसको 10 माना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 1500 न्यूटन, ठीक है 1 2 3, सो दैट विल बी 1.5 10⁻³ न्यूटन, ऐसा लिख सकते हैं वैसे। तो कहाँ दिया है वैसे 9.81 जब नहीं मानना है तो। ओके, रिक्वायर्ड एयर प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस टास्क। तो भाई साहब प्रेशर P1 निकाल लो या P2 निकाल लो, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे P2 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे भाई साहब पाई आर स्क्वायर धमेला क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब P2 मतलब F2/A2 हो जाएगा, F2/A2, F2 की वैल्यू कितनी है 1350 इंटू 9.81, ये तो 9.81 मतलब 10 ही मान रहे हैं ना अपन इसको। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 3.14 पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब हो गया भाई साहब कितना, आर कितना है यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 15 इंटू 10⁻⁻², इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों चेंज करना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स मैटर करते हैं। यहाँ पे ये केजी में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये भाई साहब तो पाई है, इसको आप भाई साहब सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, सो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो भी आएगा दिस इज अप्रॉक्सीमेटली कमिंग टू हाउ मच 1.9 इंटू 10⁻⁵ रस्कल, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी।
द नेक एंड बॉटम ऑफ अ बॉटल आर 2 सेंटीमीटर। तो भाई साहब कोई बॉटल दिया हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया नेक एंड बॉटम। तो नेक है भाई साहब आपका कितने का, 2 सेंटीमीटर का, एंड बॉटम ऑफ द बॉटल इज 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर है भाई साहब, तो इसका मतलब रेडियस इसका हो जाएगा भाई साहब कितना, 1 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा R1, ये हो गया R2, दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। द नेक एंड बॉटम ऑफ अ बॉटल आर दिस एंड दिस इन डायमीटर, ठीक है। इफ द कॉर्क इज प्रेस्ड विद अ फोर्स ऑफ 1.2 kg, तो कॉर्क होते थे पहले ज़माने में, वैसा आप लोगों ने नहीं देखा है, ये एक्चुअली एनिमल एक प्लांट टिश्यू से बना हुआ होता था, जिसको अगर प्रेस किया जाए, आपके जितने भी लैब में बॉटल्स होते हैं वो उस सब में कॉर्क फिटेड होता है, ठीक है। तो ये इफ द कॉर्क इज प्रेस्ड, इफ द कॉर्क ऑफ द बॉटल इज प्रेस्ड विद अ फोर्स ऑफ 1.2 kg, 1.2 kgf मतलब समझते हैं क्या होता है भाई साहब, बोलो 1.2 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स, 1.2 किलोग्राम फोर्स मतलब 1.2 इंटू 10 और 9.8 जो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो दैट विल बी 1.2 इंटू 10, चलो आपने पहले ही वैसा आसान रास्ता निकाल लिया, ठीक है। 1.2 इंटू 10 न्यूटन, इतने का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आता, ठीक है। दिस इज द फोर्स बेसिकली विच यू आर अप्लाइंग, अज्यूमिंग दैट G इज 10, ठीक है। ओके, नेक ऑफ द बॉटल, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल। तो बॉटम ऑफ द बॉटल में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, तो भाई साहब यहाँ पे जो प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो वही प्रेशर बॉटम ऑफ द बॉटल पे भी जाएगा बाई पास्कल्स लॉ, ठीक है। सो प्रेशर विल बी द सेम इन द बॉटम एज पर पास्कल्स लॉ, ठीक है, एज पर पास्कल्स लॉ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो अब बताइए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका प्रेशर, कितना है भाई साहब आपका प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना ही लगा रहे हो तुम भाई साहब 1.2 इंटू 10, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कितना है भाई साहब इसका पाई इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज, तो वहां पे क्या कैलकुलेट करना भाई साहब, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड। तो यहाँ पे पाई, तो अपन इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया 1 किलोग्राम फोर्स न्यूटन हो गया ये, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी फोर्स F2 जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, समझम, अपॉन एरिया, एरिया कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे पाई इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अरे सॉरी 5 मतलब हो गया 25 ना, तो 50 भाई साहब हो गया 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप बोलोगे न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, लेकिन हम इसको वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये वाला भी आपका भाई साहब हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो आपका F2 का वैल्यू बच्चा बॉडी कितना हो जाएगा 25 इंटू 1.2 इंटू 10 न्यूटन। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम कितना हो जाएगा भाई साहब ये 300, इसका होगा 30 ना, और 10, 25 इंटू 1.2 होगा 30 इंटू 10 दैट इज 300 न्यूटन। चलिए भाई साहब, तो आपका फोर्स कितना जनरेट हो रहा है एट द बॉटम, द फोर्स जनरेटेड इज 300 न्यूटन। तो आप देखोगे भाई साहब, नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, क्लियर है, देख लेते हैं भाई साहब फिर भी। ओके, तो आपका देखो केजीएफ में आंसर दिया हुआ है, तो 300 न्यूटन को अगर अपन केजीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 300/10 केजीएफ, ठीक है। जैसे केजीएफ से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे न्यूटन को केजीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप भाई साहब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया आपका 30 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो आपका देखो ऊपर आपने कितना ही किलोग्राम फोर्स लगाया था 120, और नीचे उसका प्रेशर कितना हो गया भाई साहब आपका 30 किलोग्राम फोर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम सही जा रहे हैं।
चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। ठीक है आप लोग जाइए उधर।